Good morning, everyone. How are you? I believe that all of you are very safe at home and you are going through the online classes. And I want to welcome you to the another video or the third day of our online class. Till now, we have studied. I have given you the instruction how to use the online platform, and also I have given you the homework. And we were going through the paragraphs of the adventure of Toto. So today we will continue that the adventure of Toto, and we will try to finish. If not, then we will complete some portions from the adventure of Toto. But before that, I want to tell you that a few students have sent their homework to the group, and there are few students those who are not started. So those who are not started, please start to work and send it. And the new students who are new admission, those who are taken to the school, I'm giving you time that you can complete your homework by August first week. August first week. In August first week, you have to send your homework. For this is only for new students. All students have to work. This week you work and somehow you have to send the work. Now one more thing. When you send the photo, try to make it in a PDF format. I believe you all are good on technology. So when you can from Play Store you can download PDF converter or PDF makers. So where you can take the photos. If there are 10 photos, then you can take the photos and convert into PDF and then send. Because when you send a PDF form, only one file will come. When you send photos, all 10 will come different. I hope you understand. So with that, we can actually you can also save this page, and also it will be good for the group also. Otherwise, it is you know that it is creating a lot of confusion. But no problem. If you can do, please convert it into PDF and then send. The first main thing, you have to write your name and class on the top of every page of your copy and your notebook, and you have to send it. तो जैसे कि मैंने देखा कि बहुत से बच्चों ने नाइन्थ में, बहुत से बच्चों ने जो है आप लोगों ने होमवर्क सेंड किए हैं। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है, आप लोगों को काम स्टार्ट करना है। जो नए बच्चे हैं, स्कूल में नया एडमिशन हुआ है, उनको हम टाइम दे रहे हैं। आप अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर आप सेंड कर सकते हैं, यानी आपके पास 15-20 दिन का टाइम है। आप आराम से काम करिए, आप अगस्त फर्स्ट वीक तक भेजिए। जो लोग पुराने हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं, उनको काम करना है। यू हैव टू सेंड द वर्क इन अ प्रॉपर टाइम, ठीक है। और उसके साथ साथ जब आप भेजें तो ऐसे फोटोज ना भेजते हुए उसको पीडीएफ बनाने की कोशिश करें। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ बनाने के फॉर्मेट्स होंगे। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फोटो खींचे, उनको पीडीएफ बनाएं और भेजें, ताकि उससे क्या होगा, एक फाइल आएगी। अदरवाइज आप जब फोटोज भेजते हैं तो बहुत सारे फोटो एक साथ आ रहे हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम अगर एक 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 पीडीएफ बना ले पूरी चीज का, तो उससे क्या होगा, फाइल कम हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, अभी ऐसा है, आने वाली क्लासेस में हम लोग ऐसे करेंगे। फिर दूसरी बात, आप लोगों को सबको पेज के ऊपर अपना नाम और क्लास लिख के भेजना है। दूसरों की कॉपी ना करें, दूसरों का डाउनलोड करके मत भेजें, क्योंकि हमें पता चल जाएगा, कैसे भी हो हमें पता चल जाएगा कि आपने दूसरा का कॉपी करके भेजा है ना। इससे अच्छा है कि आप काम करें, भले इस हफ्ते में आप काम करें और उसको फिर सेंड कर दें, मगर दूसरों की कॉपी करके ना भेजें। दूसरी मेन थिंग और मैं आपको कहना चाहूँगा, इट विल बी गुड अगर आपके पास टाइम है तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में ही आप इसमें मैसेज डालें। कोई रात को भी मैसेज कर रहा है, 12 o'clock को भी कोई मैसेज कर रहा है, कोई 4 o'clock को मैसेज कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, एक तो आप भी सो रहे नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, ठीक है, वो भी गलत है। और उससे क्या होगा, रात को भी मैसेजेस आप डाल रहे हैं तो आपके हेल्थ पे भी वो प्रभाव करेगा। तो इट्स बेटर इफ यू पुट दैट वीडियो फोटोज और जो भी आपका होमवर्क है, अगर आप डाल रहे हैं तो आप बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले पहले आप उसको डाल दें, ताकि आप भी टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। तो हम अब चलेंगे, मैं अपने सब्जेक्ट की ओर। इंग्लिश फर्स्ट मोमेंट्स, द एडवेंचर ऑफ टोटो, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स यानी बहुत सारे काम किए उसने, ठीक है। तो हमने अभी तक हमने देखा, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। क्योंकि ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट आ रहा है, इसलिए मैं आपको रिकैप दे देता हूँ एक। नाउ दैट इज द रिकैप। इट सेज कि देयर इज अ फैमिली जहाँ पे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। ग्रैंडफादर जब
एक बार मार्केट से आते हैं तो वो एक टांगा ड्राइवर के पास में एक बेबी मंकी को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पे टोटो बताया गया है। उस मंकी को देख के फादर को बहुत एम्पैथी या सिंपैथी फील होती है। सिंपैथी फील होने की वजह से वो जो ग्रैंडफादर है टोटो को खरीद लेते हैं टांगा ड्राइवर से। कितने रुपए में? 5 रुपीज में। 5 रुपीज में वो टांगा ड्राइवर से खरीद लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टोटो के बारे में बताया गया है कि टोटो कैसा है, टोटो के दिखने में कैसा है, उसकी पूंछ के बारे में, ये सारी चीजें वहाँ बताई गई। देन वी कैन सी दैट आफ्टर उसका एक डिस्क्रिप्शन देने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर जो है दादी जी को यानी ग्रैंड मदर को उन्होंने नहीं बताया कि वो टोटो को लेके आए, क्योंकि शी बिकम्स वरीड, वो बहुत चिंतित हो जाती हैं या कभी कभार गुस्सा करती है, तो उसको इनको नहीं बताया। उन्होंने ट्राई किया कि उसको कमरे के एक क्लोसेट में यानी एक अलमारी में उसको छुपा के रखें एक थोड़ी देर के लिए, मगर वहां पे टोटो क्या करता है, पूरा जो उसका वॉलपेपर है और वो सब कुछ तोड़ देता है, और वहाँ पे जो ब्लेजर जो कोट लटका हुआ है उसको पूरा फाड़ देता है। तो ऐसा करता है, मगर ग्रैंडफादर कहते हैं कि ही इज नॉटी। तो मतलब ग्रैंडफादर जो है वो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि अ, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो ग्रैंडफादर उसको उठा के जो है दूसरे जानवरों के साथ एक क्वार्टर में, सर्वेंट क्वार्टर में ले जाते हैं। तो वहां पे उसको रख लेते हैं, ठीक है। मगर वहां पर भी वो क्या करता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दूसरे जानवर को वो सोने नहीं देता रात को, और ऐसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर को जो है नेक्स्ट डे देहरादून स्टेशन से सहारनपुर जाना है, जहाँ पे उनका पेंशन का कुछ काम है, वहां जाना है उनको। अब वो टोटो को घर पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए ग्रैंडफादर क्या डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ लेके चले जाएंगे। और वो क्या करते हैं, अपने साथ लेके जाने के लिए एक बैग, डफल बैग जो है वो एक बैग टाइप बनवाते हैं। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग बैग है, उसमें उस टोटो को रखते हैं और वो लेके चले जाते हैं। मगर स्टेशन पे क्या होता है, देहरादून स्टेशन पे क्या होता है कि टोटो जो है वो क्या कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू कम आउट, मगर वो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि बंद है बैग, तो वो नहीं आ सकता। तो जब वो कोशिश करता है, जब वो ट्राई करता है, वो क्या करता है, उछलने की कोशिश कर रहा है, रोलिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होता है, वो जब सर अब देख लिया रेलवे स्टेशन बेटा, एक बैग अपना आप हवा में उछल रहा है ना, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एक फनी अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। तो जैसे ही वो उछलता है तो लोगों को क्या दिख रहा है, एक बैग अपना आप हवा में जा रहा है, नीचे आ रहा है, रोल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वहां पे जितने लोग जो स्टेशन पे बैठे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, अभी इट इज अट्रैक्टिंग देम, वो दूसरों लोगों को आकर्षित कर रहा है। फिर क्या होता है, हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर, हमने प्लेटफॉर्म तक पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे यहाँ से। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज Saharanpur, but while grandfather was purchasing a ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या हुआ, सहारनपुर तक तो टोटो जो था बैग में था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर जैसे ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन में पहुंचे और जब दादाजी जो है टिकट कलेक्टर को, जो होता है ना रेलवे स्टेशन के बाहर, मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे एक गोल सा जैसे डोर लगा के रखते हैं ताकि एक टाइम पे एक ही बंदा निकले, उस जगह पे उसको क्या नाम दे रहे हैं, टर्न स्टाइल, है ना। उस जगह पे क्या है, वो दादाजी जो है अपना टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को। सडनली क्या हुआ, टोटो जो है बैग में से निकल के अपना सिर दिखा के, और जो टिकट कलेक्टर है उसको एक हंसी, मतलब एक हंस के दिखा देता है। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब जैसे उसने हंस के दिखाया, टोटो एक एकदम बैग से निकल के हंस के दिखा रहा है, तो जो टिकट कलेक्टर वो एकदम डर गया और वो पीछे चला गया। उसने क्या, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद उसने ग्रैंडफादर से बोला, सर आपके पास तो एक डॉग है ना, आपके पास तो एक डॉग है, और इसको क्या करना है, उसका जो टिकट लगेगा वो आपको भरना पड़ेगा, मतलब डॉग का भी पैसा लगता है। फिर ग्रैंडफादर क्या कहते हैं, इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए प्रोडक्ट। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब क्या हुआ, अब दादाजी ने कहा, उस मंकी को यानी टोटो को बैग से निकाला और टिकट कलेक्टर को दिखाया और कहा कि ये डॉग नहीं है, ये तो मंकी है, ठीक है। यहाँ तक कि इसके 4 पैर भी नहीं है, इसके 2 ही पैर है, 2 हाथ है, तो वो उसमें नहीं आता। मगर कितना भी बहस कर लो, जो टिकट कलेक्टर है
वो टिकट कलेक्टर बोलता है नहीं सर आपको तो इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, यानी टिकट का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना रुपए लगा? 3 रुपीज। 3 रुपीज लगा। और मतलब बहुत कोशिश की ग्रैंडफादर ने वहां पे, बहुत बहस करने की कोशिश करी, मगर 3 रुपीज तो देना ही पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक took from this packet out our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए, है ना, मतलब अजीब सा उनको हो गया कि ये तो डॉग नहीं है, इसको क्यों मैं पे करूं। तो उन्होंने सडनली क्या किया, अपने पॉकेट में से एक टोटोइस, एक कछुए को भी निकाले, छोटा पेट था उनके हाथ में, एक कछुआ था, टोटोइस था, वो भी निकाल के दिखा दिया। उनका इसका मैं क्या पे करूं, क्योंकि तुम तो सारे जानवरों का पे कर रहे हो, इसका मैं क्या पे करूं। फिर क्या हुआ, द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली टू द एट द टोटोइस, propped it with his fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." और फिर जैसे ही गुस्से में ग्रैंडफादर ने वो दिखाई, ये देखो ये भी तो जानवर, तुम इसका क्या लोगे। तो टिकट कलेक्टर ने क्या किया, उस टोटोइस को छू के देखा, और छू के देख के हंस के, जैसे एक खुशी, जीत की खुशी में एक हंस के दिखा के, और ग्रैंडफादर से बोला नहीं सर इसका कोई चार्ज नहीं, क्यों, क्योंकि ये डॉग नहीं है। मगर टोटो के लिए 3 रुपए देने पड़े उनको। फिर क्या होता है, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. अब क्या हुआ, दूसरे दिन वो घर पे पहुंच गए, घर पे आके उन्होंने ग्रैंड मदर को बता दिया, यानी स्टोरी कट शॉर्ट कर दिए। अब दादी माँ को बता दिया है कि टोटो हमारे साथ होता है, और दादी माँ ने भी एक्सेप्ट कर लिया टोटो को। अब क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को एक एक जगह दे दी, कहाँ पे, स्टेबल में, तबेला होता है जहाँ पे दूसरे जानवर भी थे। वहां पे कौन सा जानवर था, एक और पेट था उनके पास, फैमिली डोंकी, एक डोंकी था जिसका नाम क्या था, नाना। नाना डोंकी का नाम है, ठीक है। तो वहां पे मतलब इन बाकी एनिमल्स के साथ टोटो को भी रख दिया है। अब टोटो वहां पर है, तो जब फर्स्ट नाइट था तो ग्रैंडफादर देखने गए कि क्या टोटो कंफर्टेबल है या नहीं। देखने के लिए ग्रैंडफादर जो है वहां जाते हैं, कहाँ पे, उस टेबल में या तबेले में जो जाते हैं। वहां जाके वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो नाना है, यानी जो डोंकी है, वो क्या कर रहा है, अपने आप को पीछे खींच रहा है ना, पीछे खींच रहा है। इसका मतलब जो है, मतलब जो भूसा होता है, खाने का जो भूसा रखा था, उससे वो बहुत जोर से अपने आप को पीछे खींच रहा है। तो वो देख के दादाजी बहुत मतलब ऐसे कंफ्यूज हो गए, ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे पीछे क्यों खींच रहा है, ट्राइंग टू पुल इटसेल्फ, तो वो अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वो सोच रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर haunches, and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on her long ears with the sharp teeth. Toto and Nana never became friends. और ग्रैंडफादर ने ये देख के, जैसे नाना जो डोंकी वो पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रैंडफादर आके डोंकी के पीछे से मारते हैं। तब उनको क्या, जैसे वो पीछे आता है तो पता चलता है कि टोटो क्या है, नाना यानी डोंकी के ईयर्स पे बैठा है, कान पे, कान को काट के ऐसे खींच के बैठा है अपने दांतों से, ठीक है, काट के बैठा है। और फिर क्या हुआ, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और उसके बाद कभी भी टोटो और नाना जो है, कभी भी उसके कभी भी दोस्त नहीं बने वो एक साथ, ठीक है। फिर क्या होता है, a great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दी के समय में टोटो को सबसे बड़ा पसंदीदा एक ट्रीट, मतलब बहुत ही पसंदीदा काम क्या होता था, ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको बाउल, बड़ा जो बर्तन होता है, उसमें गर्म पानी करके दे देती, क्या करने के लिए, नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other. He had seen me do until he was into the water up to his neck. वो क्या करता था, जैसे वो गर्म पानी का बाउल आता था, तो बड़े चतुराई से कनिंगली ही यूज्ड टू टेस्ट द टेम्परेचर, कैसे अपने हाथ को उसमें डाल के टेस्ट करता था, कि टेम्परेचर देखता था कि गर्म, ज्यादा गर्म तो नहीं है या ज्यादा ठंडा तो नहीं है। तो टेस्ट टेस्ट करने के बाद फिर वो एक पैर उसमें डालता था, पहले 1 फुट अंदर डालता था, फिर 2 फुट दोनों अंदर डाल, फिर वो आराम से नेक डीप तक, मतलब अपने नेक, गर्दन तक वो बैठ जाता था। वंस कंफर्टेबल,
he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. और जब वो आराम से बैठ चुका है, अब कंफर्टेबल हो चुका है, तो क्या करता था, साबुन उठाता था, अपने पूरे बॉडी पे रब कर लेता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब जब पानी ठंडा हो जाता था, जो मतलब बैठे बैठे पानी ठंडा हो गया, तो जल्दी से भाग के निकलता था और किचन की ओर जाता था, और वहां पे जहाँ पे चूल्हा या जो फायर है वहां पे उसके पास में जाके खड़ा हो जाता था अपने आप को सुखाने के लिए. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt, and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और अगर इसके दौरान, यानी वो नहाना, उसके बाद वो दौड़ के किचन में, इसके दौरान अगर किसी ने उस पर हंस दिया, कोई उस पर हंस दिया, तो क्या होता था, वो बहुत फिर नहाने से मना कर देता, फिर वो नहाता ही नहीं था, फिर ऐसा करता था, उसका मतलब फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी उसकी. ठीक है. और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो गर्म होने के चक्कर में अपने आप को उसने बॉईल ही कर लिया, मतलब बिल्कुल उबाल ही लिया, ऐसी हालत हो गई. ठीक है. तो आज हम अपना वीडियो यहाँ तक रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगा. ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी का 2 पैराग्राफ बचा है हमारा, वो 2 पैराग्राफ हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, एंड क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ आपको मिल जाएंगे. तो अगेन आपको बातें याद रखनी है कि अभी तक हमने क्या क्या देखा, कि टोटो के बारे में देखा, टोटो सहारनपुर में कैसे जाता है, टिकट कलेक्टर को कैसे डराता है, वहां पे दादाजी को वहां पे पैसे जमा करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद दादी जी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद उसको स्टेबल में रखते हैं, यानी तबेले में रखते हैं, वहां पे नाना जो उनका डॉन्की, उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. फिर हमने देखा वो नहाता कैसे है, वो सुखाता कैसे अपने आप को, कैसे किचन में दौड़ के जाता है. तो ये चीजें आज हमने देखी. ठीक है. तो अभी तक हमने ये वीडियो आपने देखा होगा, तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का भी आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर इसके साथ आएंगे. पहले के क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने कहा, जो नए स्टूडेंट हैं उनके पास टाइम है, वो आराम से करें. ठीक है. कोई जल्दीबाजी नहीं है. और उसके साथ साथ जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी करना है, मगर प्लीज टाइम से भेजें. ऐसा नहीं कि आप रात को शाम सुबह 4 बजे भेज रहे हैं या 12 बजे भेज रहे हैं, नहीं. आपको टाइम से भेजना है. अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट डे भेज दीजिए. मान लीजिए आपका काम आज नहीं हुआ है, जब भी होता है नेक्स्ट डे भेजिए, उस टाइम रात को मत भेजिए. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 12 बजे भेज रहे हैं तो आप 12 बजे तक जगे हुए. नो, दैट इज नॉट फेयर. ठीक है. वो सही नहीं है. अगर आप 12 बजे तक जग रहे हैं तो वो गलत है. तो आप टाइम से भेजिए ताकि आप टाइम पे सो सकें या जो भी आपका काम कर. ठीक है. मॉर्निंग 4 o'clock को इसका मतलब आप जल्दी उठ गए या सोए नहीं, तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना बेटा. तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है. मॉर्निंग 8 o'clock से लेके इवनिंग 8 o'clock के बीच में आप भेज दीजिए इसमें जो वर्क है वो. ठीक है. और उसके बाद नहीं होता है कोई बात है, नेक्स्ट डे भेज. ठीक है. तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. कल अगले वीडियो में जो है हम लोग बाकी पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है. टिल देन बी सेफ, स्टे एट होम, स्टडी, do your homework, take your time, do your homework, study well, and we will try to finish it the next class. Till then, bye bye. Thank you.